हाय, आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे लास्ट 2 क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जैसे हम क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी किए थे, इफ क्या कहते हैं, if alpha comma beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and definite of a is not equal to 0, then आपका sum of roots means alpha plus beta equal to minus b upon a and product of roots is the c upon a. ये आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखते हैं क्यूबिक इक्वेशंस का क्या होगा। Let us take alpha, beta, gamma are the roots of a cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. Then provided a is not equal to 0. Then आपका sum of roots alpha plus beta plus gamma, it is called summation of alpha. This is minus b upon a. कैसे हो रहा है? I will tell this. Minus b by a, which is minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Then sum of two roots means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. This is called summation of two roots, which is plus c by a. That is coefficient of x upon coefficient of x cube. Next is the product of roots. Next one is the product of roots. Alpha, beta into gamma. And that also you can write pi of alpha, product of roots, which is minus d upon, which is minus coefficient of x power 0 upon coefficient of x cube. What you observed here, देखो ये अल्टरनेटिव साइन दे रहा है। फर्स्ट वन आपको माइनस में दिया, सेकेंड वन प्लस दिया, थर्ड वन माइनस दे रहा है, और सबका डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, और इसमें क्या हुआ, एक एक कम होता गया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देन एक्स का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म और एक्स पर 0 का कोएफिशिएंट। नाउ क्वेश्चन इज ये कहां से मिला? देखते हैं कहां से मिला। मैंने क्या बताया था? लेट अस टेक अल्फा, बीटा, गामा आर द रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो क्लियरली दिस ax क्यूब plus bx square plus cx plus d, you can write
a into x minus first root into x minus second root into x minus third root. आप ये तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट a into x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square. It is sum of roots into x square. Then plus summation of alpha beta, मतलब alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x होगा, then minus alpha beta gamma. ठीक है. आज a is not equal to 0, तो मैं क्या a में डिवाइड कर देता हूँ, both side divided by a, तो x cube plus b by a into x square plus c by a into x plus d upon a became x cube minus sum of roots into x square plus sum of two roots into x minus product of roots. अब ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो x क्यूब का कोएफिशिएंट तो बराबर हो गया, दोनों का 1 दे दिया, तो अभी दोनों इक्वेशन सेम होगा तो क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, ये दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, बट ये ऑलरेडी 1 हो गया, तो सीधा सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, b by a equal to minus of sum of roots. So here you will get sum of roots equal to minus b by a. Sum of two roots equal to c by a. Product of roots equal to minus d by a. Like that आप 4th degree equation, 5th degree equation सबके लिए ऐसे निकाल सकते हो. तो in general हम कैसे लिखेंगे? If alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on up to alpha n are the n roots of a nth degree equation, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 and so on up to a n minus 1 into x plus a n is equal to 0, provided आपका a naught is not equal to 0, ये जरूरी है. Then first one, sum of roots, summation of alpha 1 equal to minus a1 upon a naught, which is a1 upon a naught, which is minus coefficient of x to the power n minus 1 upon coefficient of x to the power n. मैं थोड़ा इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ माइनस कैन आई राइट minus 1 to the power 1 coefficient of x to the power n minus 1 upon coefficient of x to the power n. Like sum of two roots, दो रूट का सम आपको मिलेगा minus, not minus, you will get a2 upon a naught, which is you can write minus 1 raised to 2. दो के सम के लिए 2 में कर रहा हूँ, एक सम के लिए 1 कर रहा हूँ. -1 power 2 coefficient of x to the power
n minus 2 upon coefficient of x to the power n. Sum of three roots alpha 1, alpha 2, alpha 3 का sum क्या होगा? माइनस a3 upon a0. That you can write minus 1 raised to 3 coefficient of x to the power n minus 3 upon coefficient of x to the power n. तो इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा तो क्या लिखेंगे? And so on. Summation of alpha 1, alpha 2 and so on up to alpha k. मतलब k के रूट्स का सम क्या होगा? Yes. Yeah. Minus 1 raised to k coefficient of x to the power n minus k upon coefficient of x to the power. So this is the in general formula. ठीक है? इसके ऊपर आप एक एग्जांपल ले सकते हो. For an example, if alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 are the roots of fifth degree equation, 2x raised to 5 minus 7 x power 4 plus 33 x square minus 11 x plus 19 equal to 0. Then आपका क्या क्या आ सकता है? समेशन ऑफ अल्फा 1 क्या होगा? तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो क्योंकि एक्स क्यूब टर्म मिसिंग, तो इसको आप लिख सकते हो 2x raised to 5 minus 7 x raised to 4 0 into x cube plus 33 into x square minus 11 into x plus 19. अब सम ऑफ रूट्स माइनस b by a और माइनस टू दी पावर 1 कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 होगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5. तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 इज माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस 7 by 2. सम ऑफ टू रूट्स c by मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट एक एक कम होता जाएगा तो 0 हो जाएगा. सम ऑफ थ्री रूट्स, ये आपका साइन माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस पोजीशन के हिसाब से, ये प्लस ये माइनस, इस हिसाब से कंसीडर कर दो. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 था, ये होगा अभी माइनस 33 अपॉन सम ऑफ फोर रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4. ये पोजीशन का प्लस पोजीशन प्लस माइनस, ये माइनस रहेगा माइनस 11 अपॉन. ओके, समझ में आया ना? ये पोजीशन एक्चुअली नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. ये पोजीशन प्लस पॉजिटिव पोजीशन प्लस पोजीशन, तो ये तो 0 देगा. ये पोजीशन नेगेटिव पोजीशन माइनस, ये प्लस था ऑलरेडी. सपोज ये इधर माइनस 33 होता तो प्लस 33 हो जाएगा. इसका पोजीशन प्लस पोजीशन तो ये माइनस होगा. इसका पोजीशन माइनस पोजीशन तो अगेन ये माइनस होगा. लास्ट वन इज द अल्फा 1 into अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5
क्या मिलेगा आपको? -19/. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट. समझ में आया? ये था आपका रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस. ठीक. नेक्स्ट अब करते हैं नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये नेचर ऑफ रूट्स होता क्या? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. ठीक है. थोड़ा अच्छा, अभी तक जो मैंने बताया ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is a quadratic equation. बट अब बताओ व्हाट इज एबीसी? कांस्टेंट तो है बट एबीसी किसको बिलोंग करता है? हियर एबीसी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर. एबीसी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक नेचुरल नंबर, आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर्स, और एक नंबर सिस्टम होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज द बिगर सेट. ओके, रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एवरी रियल नंबर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये उससे बड़ा होता है. तो एक केस में हमें मिला था कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमें मिला. ठीक है, फिर b² माइनस 4ac डिनोटेड बाय d और डेल्टा, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ये ऑलरेडी मैंने बताया था. ठीक है, अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, रियल नंबर होगा तो फिर क्या होता है. इफ a b c belongs to real number and a is not equal to 0, then ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0, इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. ये रूट्स में हम कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, उसका नेचर हम बता सकते हैं. देखो कैसे बता. ठीक है, हम भी यहाँ पे भी x मिलेगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा और डी अपॉन पे, ये तो मिलेगा. तो
इफ डी बी ए परफेक्ट स्क्वायर देन आपको रूट्स क्या मिलेगा? रियल रूट्स, sorry, not perfect square. If d greater than 0, then ये रूट्स आर रियल. ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? ये रूट ओवर एग्जिस्ट कर जाएगा, बी रियल, ए रियल, ये भी रियल होगा, तो आपको रूट्स रियल होगा. ये बट वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स और रियल, एबीसी कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. अभी तक जो कर रहे थे वो वेदर एबीसी बिलोंग्स टू रियल और कॉम्प्लेक्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अभी फर्क पड़ेगा जब हम रियल में डाल देंगे. इफ एबीसी बिलोंग्स टू रियल. फर्स्ट, इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. व्हाई इट इज अनइक्वल? क्योंकि इसका तो कुछ वैल्यू रहेगा, एक माइनस बी प्लस होगा, एक माइनस बी माइनस होगा. तो इफ डी ग्रेटर देन 0, ये पॉइंट को क्लियर करो, इफ डी ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. समझा? इफ डी इज इक्वल टू 0, ये जब 0 हो जाएगा तो दोनों के दोनों रूट्स आपको ये मिलेगा. देन रूट्स आर इक्वल रूट्स एंड आपको क्या मिलेगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये तो 0 दे दिया. तो दैट टाइम आपको जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, दिस मस्ट बी क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. ए इंटू हम क्या लिखे थे? अल्फा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख रहे थे ना. तो दिस बिकेम ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर. तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर. ठीक है, वो जो अल्फा की जगह माइनस बी बाई, इनफैक्ट आप ये लिख सकते हो कि ए इंटू एक्स माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो. इफ डी लेस देन 0, x क्या था? माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ये था ना. इफ डी लेस देन 0, तो क्या होगा? नेगेटिव का रूट ओवर रियल नंबर नहीं दे पाएगा, वो क्या देगा? कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा. दिस बिकेम इमेजिनरी. देन रूट्स आर इमेजिनरी. देन रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स. जब इमेजिनरी रूट्स होता है एंड one root is the complex conjugate of second. Do you know complex conjugate? What is complex conjugate? If z equal to x plus iy, where x and y both belongs to real number, then z is called complex number. Where I is an iota, which is root over of minus 1. Then z bar, this is called conjugate of z. Which is x minus I. For an example, आपका रूट्स, तो इन दिस केस आपको क्या मिलेगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा का कंजुगेट और
alpha conjugate equal to beta, vice versa. For an example, x square plus 2x plus 3 equal to 0. ठीक है, तो इसमें x क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज -2 प्लस माइनस ये रूट माइनस एट होता है 2√2 इंटू आई, क्योंकि आई का स्क्वायर -1 अपॉन 2 व्हाट यू गॉट -1 प्लस माइनस √2. ठीक है, तो एक रूट क्या मिला, if one root alpha if we consider -1 plus √2i then beta हो जाएगा -1 minus √2i. तो here alpha कंजुगेट आपका बीटा होगा और अल्फा इक्वल टू बीटा कंजुगेट. Is that clear or any doubts is there? तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप थोड़ा बहुत जानते हो, ये होता है. बोलो. ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस केस क्या रखे थे, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर. अनदर केस, if ABC belongs to rational number q and a is not equal to 0, if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, तो फिर क्या होता है, वही रहेगा, वही x equal to that माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये तो फिक्स है. ठीक है, दिस इज फिक्स्ड. इसमें केस रखेंगे if delta or discriminant be a perfect square, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट और कैंसिल होके इधर आपको प्रॉपर रेशनल वैल्यू मिलेगा. ओके, तो बी रेशनल, ये वैल्यू भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, तो टोटल रूट्स देन रूट्स अल्फा एंड बीटा बोथ बिलोंग्स टू रेशनल. ठीक है, if D not a perfect square, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो बी ये आपका क्या रहा, रेशनल में रहा, ये इरेशनल रहा. तो आपका जो रूट्स रहेगा, एक if alpha is in the form of p plus root q, then beta will be p minus root q. तो एक दूसरे का क्या बोलते हैं,
Yes, conjugate sort. Then one root is the, इसको क्या बोलते हैं? This is called surd. One root is the conjugate surd of second. Right? One root is the conjugate surd of second. समझ में आया? Okay. Then next. Okay. चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. Let us take that quadratic equation two x square plus bx plus c equal to 0 if where bc belongs to rational number. If one root of the equation is if one root
Okay, what is the question? Let 2x square plus bx plus c equal to 0, where b and c both belongs to rational number. If one root alpha equal to root 3 minus 7, then find value of 3b minus 4c. So solve this question. A question को how to solve this type of question. बताओ, any idea? As I have given BC belongs to rational number and A की जगह तो 2 है तो ABC belongs to rational number, and if one root is the, ये कौन सा फॉर्मेट में दे दिया सर, actually it is minus 7 plus root 3, तो बीटा must be minus 7 minus root, conjugate उसका होना चाहिए. तो what is the sum of roots? root 3 cancel हो जाएगा, minus 14 which is the minus b by 2, तो b क्या हो जाएगा 28. What is the product of roots? Minus 7 plus root 3 into minus 7 minus root 3, which is minus 7 का square 49, a plus b into a minus b, minus 3, that is 46, and product of roots is the c by a, तो c का वैल्यू क्या होगा, yes 90. क्वेश्चन क्या था, now you have to find out 3b minus 4c, which is 3b, yes 84, minus 4c 368, बराबर ना, yes. कितना हुआ 484, 284 minus 284 is the answer. Is that clear? समझ में आया? ठीक है, चलो और कुछ डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल the integral values of alpha for which
The quadratic equation x minus alpha into x minus 10 plus 1 equal to 0 as integral roots. आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो. Find all the integral values of alpha for which the quadratic equation x minus alpha into x minus 10 plus 1 is equal to 0 has integral roots. मिला? देखो how to solve this type of question. अल्फा इंटीजर है, अल्फा इंटीजर आपका x भी बोल रहा है, वो भी इंटीजर होना चाहिए. आज इंटीग्रल रूट्स. ठीक है, तो इसका हम 2 तरीके से कर सकते हैं. इसका फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ. फर्स्ट मेथड, इसको क्वाड्रेटिक बना दो. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अल्फा प्लस 10 क्या हो गया? इंटीजर हो गया. ये भी इंटीजर हो गया. तो इसका रूट्स इंटीग्रल रूट्स दिया गया. इसका मतलब क्या होना चाहिए? आपका जो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ये फर्स्ट कंडीशन. तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अल्फा प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह 1, सी की जगह 10 अल्फा प्लस 1. क्या होना चाहिए? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. लेट अस टेक लैम्डा स्क्वायर. ये आपका डी का वैल्यू ऑफ डी. तो आपको क्या मिला? अल्फा स्क्वायर. इसमें आपको मिलेगा प्लस 20 अल्फा, 2ab में प्लस 20 अल्फा माइनस 40 अल्फा, तो माइनस 20 अल्फा प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये माइनस 4 प्लस 96 मस्ट बी लैम्डा स्क्वायर. ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. अच्छा, इसको मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि
इस साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर डालने के लिए। तो दिस वन यू कैन राइट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर, है ना। 96 की जगह मैं लिख रहा हूँ 100 माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मीन्स अल्फा माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप बताइए कौन सा दो स्क्वायर का डिफरेंस 4 होता है? और 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा? 3। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बड़ा हो गया। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसके बाद सब बड़ा होता जाएगा। 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 नहीं होगा। 4 होने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, इसको आप 4 के साथ 0 बना दो, और कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स अल्फा माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, इम्प्लाइज अल्फा माइनस 10 कितना होगा? प्लस और माइनस 2। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? एक 12 होगा, एक 8 होगा। सो देयर आर टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आपका 12 आ सकता है और अल्फा का वैल्यू 8 हो सकता है। दिस इज द मेथड। हम क्वाड्रेटिक में जब प्रॉपर्टीज यूज करके कर रहे हैं, नहीं ये चीज को थोड़ा और शॉर्टकट में हम कर सकते हैं। सेकंड मेथड, क्वेश्चन क्या था? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा एंड x बोथ आर इंटीजर। तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1। माइनस 1 दो तरीके से हो सकता है, ये प्लस 1 ये माइनस 1, और ये माइनस 1 ये प्लस 1, और कोई तरीका नहीं होता इंटीजर में। ऐसा नहीं कि आप 2 एंड माइनस ऑफ करोगे, क्योंकि ये इंटीजर ये भी इंटीजर ना। x इंटीजर था तो x माइनस 10 भी इंटीजर होगा। तो दो तरीके से होता है। तो इफ यू कंसीडर फर्स्ट वन, इसको मैं 1 ले रहा हूँ, इसको माइनस 1 ले रहा हूँ, तो x का वैल्यू क्या हो गया? इफ यू इक्वेट दिस वन एज माइनस 1, x का वैल्यू 9 हो गया। x वैल्यू 9 होगा तो 9 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा 8 मिला। नहीं, इफ यू गो फॉर सेकंड पार्ट, इसके साथ जाएंगे, तो x माइनस 10 इक्वल टू 1, तो x क्या मिला? 11। नाउ 11 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा? कितना इजी से मिल गया। तो मेथड अलग होता है, हम कुछ अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगा सकते हैं, वो हमेशा शॉर्टकट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, अब कुछ करेंगे सम पर्टिकुलर केसेस। Let us take ax square plus bx plus c equal to 0. A definitely a is not equal to 0 and abc belongs to a real. ठीक है, केस 1,
पहले तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी b 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इफ b इक्वल टू 0 हो सकता है। इफ b इक्वल टू 0 तो क्या होगा? आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी बाई ए इफ b इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एबीसी को रियल मान के रखा है। तो इसमें रियल रूट्स आएगा, रियल रूट्स आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपका ए एंड सी। ठीक है, इफ ए एंड सी बोथ हैव सेम साइन, then roots are इमेजिनरी। डेफिनेटली इमेजिनरी होगा क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है तो इसमें रूट्स क्या आ जाएगा? आपको इमेजिनरी रूट्स आएगा। और व्हेनेवर इमेजिनरी रूट्स, one root is the conjugate of other roots, that already we know. If a and c both have opposite sign तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। देन रूट्स आर रियल and one root is the negative of other। बराबर ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दैट थिंग। तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो ए एंड सी बोथ हैव opposite sign. If a and c both have opposite sign, then roots are real and one root is the negative of other root. ठीक है, now come to case 2. If c equal to 0, जब हम c को 0 रखेंगे तो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 होगा। तो x कॉमन ले सकते हैं, then you have ax plus b equal to 0. So there are two roots. तो रूट्स आर क्या होगा? एक होगा 0 एंड माइनस b बाय a। So there are two roots, एक 0 होगा और एक माइनस b बाय a। आप ऐसे भी ऐसे कंसीडर करो, नहीं तो आप एक्स स्क्वायर हम जो मिला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जब c 0 हो जाएगा तो ये तो 0 दे देगा। इसमें क्या मिला? माइनस बी प्लस माइनस बी बाई 2a। तो प्लस रखेंगे तो कैंसिल होके 0 दे देगा, माइनस रखेंगे तो माइनस टू बी बाई माइनस टू बी अपॉन 2a, दैट इज माइनस बी अपॉन ए भी कर सकते हो। नेक्स्ट, if a and c both have same sign, means a greater than 0, c greater than 0 और a लेस देन 0, c भी लेस देन 0। तो क्या होगा? रूट्स के वो दोनों में रूट्स
जो दो रूट्स आएगा उनके रिलेशन क्या होगा. Then both roots of same side. ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. तो व्हेन ए एंड सी बोथ ऑफ सेम साइन तो ये पॉजिटिव होगा. तो अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फा नेगेटिव होगा तो बीटा नेगेटिव होगा. और आप ऑपोजिट रखोगे, इफ ए एंड सी both of opposite side means a greater than 0, c less than 0, or a less than 0, c greater than 0. In that case roots क्या होगा? Then both roots of opposite side. बराबर. इसमें क्या मिला? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए विच इज नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव होगा तो दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए. एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव. राइट. नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है. नेक्स्ट, if a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, तब क्या होगा? और a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0, ये दोनों केस में आपका रूट्स आर नेगेटिव. ऐसा क्यों? तीनों एबीसी का तीनों का साइन सेम रहेगा तो आपका रूट्स हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. ऐसा क्यों? ऑलरेडी हम बताए थे कि
ओके, क्या हम डिस्कस कर रहे थे? फोर्थ पॉइंट, इफ a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0 और a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन, मतलब तीनों का सेम साइन होगा, तो देन रूट्स आर नेगेटिव। ये कहां से मिला? आज a and c both have same sign। प्रीवियस में हम क्या मिला हमें? देन roots also, roots alpha and beta both have same sign। ठीक है, इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो बीटा ग्रेटर देन 0 होगा, अल्फा लेस देन 0 होगा तो बीटा लेस देन 0 होगा। बट व्हाट इज योर अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए। बी एंड ए दोनों का साइन सेम दिया गया, तो माइनस बी बाई ए नेगेटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव होके उसका सम तो नेगेटिव हो नहीं पाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों पॉजिटिव होगा नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा। But when you choose alpha greater than 0 and beta greater than 0, that time alpha plus beta never less than 0। तो ये कंडीशन नहीं हो पा रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। समझ में आया? सिमिलरली इफ a greater than 0, b less than 0, c greater than 0, मैंने थोड़ा उल्टा किया, इसको ही चेंज किया, और a less than 0, c less than 0 but b greater than 0, वही केसेस आएगा। दैट टाइम अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो एक केस नहीं बन पाएगा, तो यही केस बनेगा। दैट मीन्स रूट्स आर ठीक है। ये थोड़ा आप जितना डेवलप अपने कर सकते हो उतना अच्छा है। जरूरी नहीं कि इस सब आपको याद रखना पड़ेगा बाय हार्ट, बट एक बार करोगे तो आपको दिमाग में रहता है ये चीज। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। इफ a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0 as equal roots, then चाहो तो मैं थोड़ा ऑप्शन दे देता हूँ इसमें टू मेक इट इजी। ABC are in AP, BAC are in AP, CAB are in AP, BCA are in AP। Okay, giving you 3 minutes, just solve this thing।
एक्चुअली 1 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। और एक चाहो तो नॉन ऑफ दिस कर देते हैं। क्या कर रहे हो? इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर रहे हो। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो पहले आपके मेथड में करते हैं। What you did, discriminant equal to 0. Okay. Then b minus c whole square minus 4 into a minus b into c minus a equal to 0. इसको सिंप्लीफाई मत करो, सिंप्लीफाई करोगे तो फंस जाओगे। ये b माइनस सी के जगह मैं ऐसे लिख रहा हूं, c माइनस a माइनस a माइनस b। चेक करो, c माइनस a माइनस b, तो a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस b हो गया, प्लस सॉरी प्लस करता हूँ, नहीं उल्टा किया ना। आपको a माइनस बी सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए। ओके, ठीक है, चलेगा ना। आपको क्या मिला? प्लस बी प्लस सी। अच्छा, प्लस करेंगे तो ये क्या मिल रहा है? सी माइनस बी, ए कैंसिल हो रहा है, सी माइनस बी का होल स्क्वायर सेम एज बी माइनस सी का होल स्क्वायर, नथिंग डिफरेंस। ठीक है ना? माइनस 4 ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये आपको क्या फॉर्मेट दे दिया? इट इज लाइक x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसको x मान रहा हूँ, इसको y मान रहा हूँ, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो c माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स b प्लस c minus 2a equal to 0. That means b plus c equal to 2a. Means what? b, a, c are in AP करो, नहीं तो c, a, b are in AP. तो c, a, b are in AP. b, a, c are in AP. ठीक है? So these two are your answer. इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था? a माइनस बी होल इंटू एक्स स्क्वायर
plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0. Roots are equal. In this equation आपका roots are equal. ये गिवन था. एक काम करो, use x equal to 1. If you use x equal to 1, आपको ये क्या मिलेगा? a minus b plus b minus c plus c minus a. ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना. इसका मतलब क्या है? जब x equal to 1 डाल रहा हूं, LHS equal to RHS, that means एक रूट जो अल्फा आपका 1 होगा, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? क्योंकि रूट्स आर इक्वल, तो अल्फा बीटा बोथ बिकम 1. इंप्लाइज आप अल्फा प्लस बीटा डालो, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा डालो, ये 1 होगा. एक्चुअली अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? c बाई ए, मतलब c माइनस ए अपॉन a माइनस बी. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी इक्वल टू c माइनस ए, इंप्लाइज b प्लस c इक्वल टू 2. मिल गया. तो b a c आर इन ए पी और c a b आर इन. तो आप सोच लीजिए कौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है. एक मैंने प्रॉपर मेथड में किया और एक कुछ सोच के किया. ठीक है. बस आज के लिए ये. हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और बहुत सारे चीजें हम जानेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. दोज आर सो यूजफुल फॉर IIT JEE. थैंक्स.